let us understand that how we will teach the action to the kids for the noun. Okay. So for proper noun, you have to place two fingers on your forehead like this. And for common noun, all the four fingers on the forehead. Proper noun, common noun. Proper noun, common noun. Proper noun, common noun. So when you are teaching them proper noun and common noun, जब आप proper noun, common noun दोनों सिखा रहे होते हैं, तो उस दौरान आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर स्पेशल नेम, कॉमन, जनरल नेम, इस प्रकार से भी आप डायरेक्टली करा सकते हैं ताकि बच्चों को प्रॉपर नाउन ही स्पेशल नेम होता है. सो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, स्पेशल नेम, कॉमन नेम, स्पेशल नेम, जनरल नेम, स्पेशल नेम, जनरल नेम. तो इस प्रकार से बच्चों को आप डिफरेंस बता सकते हैं. एंड द कलर इज ब्लैक. सो व्हाट इज द कलर ऑफ हेयर? इट्स ब्लैक. So they are touching something where the hair is, so they will remember it's a black color. Yeah. So this is the thing, this is the action you have to teach for nouns. This ये basically jolly grammar में आता है. But here we are also telling you how you can connect it with different things. Like proper noun के लिए specific name or someone or something. Like John, Anna, Turkey, Tommy, my dog, and all these things. So it's like this is, if we say my dog, my is a special dog. Like if I take the name of a dog that is Tommy, Tommy is my dog. Okay, so that's a special name. But when I say only dog, it's a common noun. Okay, Tommy is my dog. If I say this sentence, then how will a child say Tommy is my dog? Okay, so for dog, he is putting four fingers on the head, and for Tommy, he is putting two fingers on the head. Right? This way, when the child says, the child will remember special name and general name. Okay, this is the general name or for anyone or anything. Right? This is the common noun definition where we are talking about the general name. Now here, there are different types of common nouns. Common noun के और भी बहुत सारे types हैं. So this is not to be taught to the kids. ये बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है. This is only for you as a teacher, as a trainer to know about these concepts. There are no actions for these common noun. इसके लिए कोई अलग से कोई action नहीं है और ना ही इसके लिए कोई अलग से color code है. Right? Because these are the types of common noun. Only proper noun and common noun is there for the kids. इसके बाद ये definition से ही बच्चों को समझना है. Okay, because these are the things which are taught at the higher grades. But level 1 के जो 500 speech के जो proper nouns और common nouns है और जब nouns के बारे में हम बात करते हैं तो वो वही उसका action और उसका color code रहता है. Then nothing is different. लेकिन एज अ ट्रेनर यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो इसलिए हम इसको पूरे जितने भी नाउन के, कॉमन नाउन्स के जितने भी टाइप्स हैं उन सबको हम आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं. राइट नाउ व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉन्क्रीट नाउन. Concrete noun refers to the people or a thing that exist physically. वो उन लोगों को रेफर करता है जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो चीजों को हम देख सकते हैं. The things which we can see are the referring which is available. ठीक है ना, जो चीज हम देख सकते हैं, things which we can see. Now like table, chair, rice, juice, these are the things which we can see and they can be measured. That I have given something which can be concrete. ठीक है ना, जिसको हम फिजिकली कॉन्क्रीट चीजों को देख सकते हैं. that are not abstract. ठीक है ना, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों में डिफरेंस होता है. एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? that can be experienced with our five senses. That cannot be seen. ठीक है ना, दिस इज द डिफरेंस. कॉन्क्रीट चीजें जो है हमें दिख रही है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें जो चीजें दिखती हैं, दैट विच एग्जिस्ट फिजिकली, दोज आर आवर कॉन्क्रीट नाउन्स. ओके, एंड द थिंग्स विच वी कैन फील. इसीलिए हमने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था? एनीथिंग दैट वी सी, फील एंड थिंक आर नाउन. ठीक है ना. तो वो शुरू में ही जब हम बच्चों को ये चीज बता देंगे तो उनको ये चीज में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा. बट यस, फॉर स्मॉल किड्स इट बिकम्स very much difficult for a child to understand. So when the child goes in grade 3 or 4, at that time you can explain, and that time only these types of nouns come in the syllabus and the curriculum. Till class 1 and 2 the children are learning common noun and proper noun only. Class 1 and 2 तक बच्चे common noun और proper noun ही कर रहे होते हैं. तो उसके actions और उसका color
सारा कोड यहाँ पे दिया गया एट द फाउंडेशन स्टेज। बट आगे बताने के लिए हम बच्चों को क्या डेफिनेशन देंगे? एनीथिंग दैट वी सी फील एंड थिंक एज अ नाउन, इट्स divided into two parts. One is concrete and one is abstract. ठीक है ना? Abstract is something where we are getting something experienced. It can be the feeling, it can be the ideas, it can be qualities. क्योंकि अगर हम यहाँ पे qualities बच्चों को बता देंगे तो adjective भी एक quality होती है, वहां बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर उसको एक्सप्रेस करना है। लाइक यहाँ पर देखिए, काइंडनेस, काइंड इज एडजेक्टिव, काइंड इज अ क्वालिटी, तो काइंड इज एन एडजेक्टिव, बट उसमें नेस लग गया, सो नेस जब लग जाता है तब वो नाउन हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो ऐसे बच्चों को तब वो थर्ड क्लास में 8-9 ईयर्स के होंगे, 8 ईयर्स के होंगे, तब उनको इसके डिफरेंस समझ में आ जाएगा। छोटे बच्चों को हम इसीलिए कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नहीं बताते, वी डू नॉट टीच देम कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, राइट? नाउ नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। यस, कलेक्टिव नाउन इज गिवन इन क्लास 2 में कलेक्टिव नाउन बताया जाता है। और यूजुअली यहाँ पे टीचर्स के अपने अपने बनाए हुए एक्शंस रहते हैं। यूजुअली उसको ना कलेक्शंस को जो है एक ऐसे क्लस्टर के रूप में ऐसे बताकर कलेक्टिव नाउन बताया जाता है। सो व्हेन वी कैन गिव, बट दैट इज नॉट जेन्युइन, अभी तक कहीं पर भी किसी बुक में या कहीं नहीं लिखा है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट शोइंग यू। बट यस, यू एज अ टीचर यू कैन फ्रेम एनी एक्शंस। अगर आप जॉली ग्रामर जो भी एक्शंस आप डालना चाहते हैं you can put it, but still in jolly grammar these type of actions are not given. I would request जो भी ये चीज कर रहा है प्लीज स्क्रीन पे, I would request प्लीज मत कीजिए, बच्चों जैसे हरकतें प्लीज मत कीजिए। अगर आपका बच्चा भी कर रहा है तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है? सो रेफर टू अ सेट और अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। ये क्या होगा? किसी भी ग्रुप को बताएगा। इट कैन बी अ प्लेस ग्रुप, पीपल ग्रुप, एनिमल ग्रुप और अ थिंग ग्रुप। यानी नाउन के किसी भी ग्रुप को, किसी भी टीम को, ऑडियंस हो गए, किसी भी कलेक्शंस हो गया, उन सबको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। इसकी काफी अच्छी लिस्ट होती है जो हम बच्चों को यूजुअली याद करने के लिए दे देते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर मेथड्स में। बट यहाँ पर हमें पिक्चर्स के साथ में बच्चों को बताना था। वी हैव टू गिव देम द पिक्चर्स वेयर द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड। दिस ऑल्सो कम्स इन क्लास 3 ओनली। फिर काउंटेबल नाउन्स, दिस कम्स इन क्लास 1 and 2। लेकिन यहाँ पर जब 1 and 2 में काउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, यहाँ पर जॉली ग्रामर में प्लूरल वाला जो स्पेलिंग रूल है ना, उसको सिखाने के बाद काउंटेबल नाउन्स को बताया जाता है। जो प्लूरल रूल होता है जहाँ पे एस, ई एस, एक्स, एस, श, छ, छ, ये वाले जो कॉन्सेप्ट जब हम सिखाते हैं, आपने अगर रूल, स्पेलिंग रूल्स